we are going to say industrial safety. So whenever we are going to have a electrical equipments, so at that place you should have safety equipments, then and only then you should proceed to start operating with the electric equipments. Okay, so for how we can go with the safety equipments, how should we operate this all the equipments with safety guidelines, everything that we are going to see with the help of this industrial safety subject, which is included in your syllabus. Why it is included in your syllabus? It is not just for scoring or have a part of academics. It is the part of our life, right? So we will just see what is the objectives or outcome of this course. So why this course has been given? So it is given to identify the components needed to provide a safe and handful or healthful work environment through the case studies and a review of injury statistics provided in the course. Okay, so whatever the things we are doing that should be done, there is no any alternative. So it should be done with great safety. So 100% safety, what we can call it as. Okay, so everything should be done with the help of safety. Okay, without safety you should not proceed even for anything with the electric equipments or any equipments. With the safety guidelines you should proceed. Okay, that is what the aim of learning this subject. Okay, objective of learning this subject. So we can see here. So first we have seen this one. Okay, and then to analyze the safety and health issues resulting from worker complaints or OSHA. Okay, so is the organization. Okay, international organization which gives you the guidelines, that is OSHA. Okay, so we should be able to analyze as an engineer, we should able to analyze all the safety and health issues which are coming over the workplace. Okay, and we should suggest some alternative some safety guidelines for making the work environment better. Then to identify the potential workplace safety. Okay, workplace safety guidelines, workplace safety things or equipments that should be identified as engineer. You should have that that kind of awareness. And health hazards. Okay, where the hazards may happen. Okay, और जहाँ पे भी ऐसा लगता है कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स की और ज़रूरत है, वहाँ पे आपने वो आइडेंटिफाई करके सजेस्ट करना चाहिए। उसके साथ ही हेल्थ हजार्ड्स जहाँ पे हो सकता है, जैसे कि स्मोक है या फिर अनहेल्दी इन्वायरमेंट है, हाईली मतलब हीटेड एरियाज है ना, मतलब हम लोगों को काम करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है ना, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है वहाँ पे, है ना, या फिर एयर सर्कुलेशन बराबर नहीं है, तो वो हेल्थ हजार्ड्स जो भी है, या फिर कोई केमिकल है वो केमिकल लीक हो गया तो और कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे और उसको जो गाइडलाइंस के हिसाब से हम उसके ऊपर रेमेडीज देखें, सजेस्ट करेंगे और वो हजार्ड्स जो होने वाला है उसको रोक सकते हैं हम लोग। ठीक है, एंड डिटरमाइन हाउ to mitigate the hazards through the engineering controls. We have that type of control parameters
So through that control parameters, engineering controls, we can avoid that type of hazards, we can mitigate the hazards. Okay. Then administrative control and personal protective equipments, administrative control ये भी होना चाहिए, है ना। और उसके साथ पीपीई, हमारे पास तो ये बहुत बार हम लोगों ने सुना होगा पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ओके। सो ये यहाँ पे भी पीपीई किट्स होते हैं, है ना, फॉर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैंडलिंग। ओके। देन टू डेमोन्स्ट्रेट research skill necessary for mastery of the topics which will entail a presentation. So to demonstrate the research skills, okay, so that research skill is having with the officers like you, and for the mastery of the topics. So wherever you are working or research on some topics, that should be done with the great enthusiastic, or what again called as intelligent way, so which will be intel a presentation. Okay. So this is what just course objective. Again we are having some objectives. So on specific industry, workers compensation claims in the industry selected by the student will be evaluated and injury prevention method reviewed in the report. So, okay. So whenever we are going to visit an industry, worker compensation claims and in industry so sometimes what we can call it as compensation and all these things we should see. Okay, we should deal with these things also. Okay. And we will be able to evaluate the injury prevention methods. सबसे पहले important चीज है injury prevention methods. We should make an awareness in between the workers and whoever is working over there, and we should prepare a report for that one. Okay. That is also a responsibility of a safety engineer. Okay. So not a safety engineer only, um, it is the responsibility of everyone who is working over there. Okay. So everyone should know the reality, what is the necessity. Okay. Then we should have this to contact basic safety inspection. Okay. To conduct the basic safety inspection using strategies. Okay. So regular safety inspection are there, so we should be able to conduct that inspections on regular basis to avoid some accidents that may be happened. Okay. Or hazards. So we will see the hazard identification methods. Okay. And a job hazard analysis. So even if nothing has happened over there, we should regularly check hazards prevention analysis and hazards analysis. Okay. So to prevent the expected uh, accidents also. Okay. So or injuries. So to review the principles for developing the and implementing successful occupational health and safety program एंड इवेल्युएशन ऑफ द वर्क साइट। सो वर्क साइट को भी इवेल्युएट करना पड़ता है हम लोगों को, यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहे हैं, नॉट इवन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बट ऑल्सो वेन एवर वर्कर आर वर्किंग एट अ पर्टिकुलर हाइट, so we should see, we should analyze the safety or ensure the safety of that person, even if he is not able to what we can call it as the at that height, it is not, he is not able to perform well. We should have some safety equipments with him,
so that he will be in good confidence and do the work very effectively. Okay, so if you don't have the safety equipments, okay, then it will be difficult to work efficiently to the workers. Okay, then to compare the past and contemporary philosophies of safety and accident prevention. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? एक्सीडेंट प्रिवेंशन। एक्सीडेंट होने के बाद कुछ नहीं कर सकते हम लोग, होने के पहले जो चीज़ करना है वही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि होने के बाद बहुत तबाही हो सकती है और किसी जान भी जा सकती है, तो वो हम लोग वापस नहीं ला सकते। तो वो कैसे होता है? तो एक्सीडेंट प्रिवेंशन जो है वो सब हम लोग देखेंगे, तब भी वो सब चीज़ें हो सकती हैं। एज वेल एज बी एबल टू कंपेयर इंजरी डाटा फ्रॉम प्रीवियस डिकेड्स। ओके, इंजरी कितनी, कैसे हुई, क्यों हुई, किसकी गलती थी, और वो गलती क्यों हुई है, उसके लिए गाइडलाइंस थी क्या, या फिर वैसी गाइडलाइंस हम लोगों को बनाना पड़ेगा क्या, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, है ना। Also, next objective is to identify the moral and economic consequences associated with the major classification and cause of accident and the cost of worker compensation based on the risk classes industries. Okay, so this is what just we can call it as the economics. Identify the moral and economic consequences, okay, which are associated with the major classification and causes of accidents. So whatever the causes we have identified for the accidents, so related to that causes we should aware people not to have an accident again. Okay, so again we will have some objectives to explain the causal relationship between the accidents and liability, including the no fault workers compensation. Okay, then the system and third party liability types. Okay, so ये सब चीज़ें हैं, ये एक है। और देन आइडेंटिफाई द बेसिक फायर प्रिवेंशन, सबसे इम्पोर्टेंट फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम। सो ये प्रोग्राम्स भी हम लोगों को कंडक्ट करना पड़ता है। देन टू आइडेंटिफाई द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी यानी क्या है? जहाँ पे भी हम लोग काम करते हैं वहाँ पे हम लोगों को कंफर्ट फील होना चाहिए काम करने के लिए, है ना। और अगर हम लोगों को बोलेंगे कि ऐसे ही जाओ टावर पे, वहाँ पे कुछ काम करना है वो करके आओ, है ना, हमारी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि टावर भी कितना ऊंचा होता है ना, 70-80 फीट का भी हो सकता है। तो वहाँ पे बेयर हैंड हम लोग नहीं जा सकते। हमारे पास पूरे सेफ्टी इक्विपमेंट्स अगर होंगे तो हम लोग मतलब डेयरिंग करेंगे कि वहाँ पे जाना है, नहीं तो नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना। सो देन वो सब चीज़ें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम हमको वहाँ पे कंडक्ट करना पड़ेगा। देन टू डिस्क्राइब बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव company safety and health program, that is including the management committee, then employee involvement, hazards recognition and control and trainings. So these all things are very much important। मैनेजमेंट कमिटमेंट, सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं मैनेजमेंट, उनका कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है। देन एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉय ने अगर यूज़ ही नहीं किया सेफ्टी इक्विपमेंट तो क्या करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। देन हजार्ड्स रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन कब होगा? जहाँ पे भी कुछ ऐसा एक्सीडेंट छोटा मोटा हो गया तो तुरंत सब लोगों ने जैसे कि वैसा बताना चाहिए, ना कि खुद की जो मिस्टेक है वो छुपा के रखना है। उससे क्या होगा, फिर से और वही एक्सीडेंट हो सकता है। देन कंट्रोल ऑफ द हजार्ड्स, कंट्रोल करने के लिए जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सिलेंडर्स है या नहीं वहाँ पे, क्योंकि कभी कभी वे सिर्फ दिखाए जाते हैं, है ना। उसके साथ क्या है सब इम्पोर्टेंट, और ट्रेनिंग है। ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले एक एक करके। ओके, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, दिस इज कोर्स आउटकम। अभी तक हम लोगों ने कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, किस लिए कोर्स, ये सब्जेक्ट हमको दिया है हम लोग देख रहे थे। अभी क्या देखेंगे? कोर्स आउटकम्स, to understand the basics of safety and its need and objectives in the industries. So
एक कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमको ये समझ में आना चाहिए सेफ्टी के बेसिक्स, दूसरा क्या है उसकी ज़रूरत क्यों है, और किस लिए इंडस्ट्री में उसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है ना, उसका महत्व क्या है ना, वो सब चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए। देन द लर्न द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट एंड इट्स एक्टिविटीज़। सो ये सब चीज़ें हमको समझ में आना चाहिए कि हमारा रोल क्या है एज अ सेफ्टी मैनेजर, और अगर मैनेजर भी रहा तो हमारी सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, है ना। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज़, है ना। उसके बाद अप्लाई द नॉलेज ऑफ सेफ्टी एंड अवेयरनेस, अवेयरनेस भी करना है और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी लेना है। वो नॉलेज अप्लाई करके हम लोगों ने नॉलेज गेन किया है सब्जेक्ट के थ्रू, और वो हम लोगों को सबको बताना है। हम जब भी हम लोग कुछ नॉलेज गेन करते हैं तो हमारे पास ही रखते हैं, उसके बाद वो वोलेटाइल रहता है, वो निकल जाता है एग्ज़ाम होने के बाद। लेकिन ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी का सब्जेक्ट ऐसा है कि हम लोगों को खुद को समझ में आया तो हम लोगों को बाकी के लोगों को भी बताना है, हमारे नेबर्स को भी बताना है, हमारे कलीग्स को भी बताना है कि इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें हैंडल करते समय या फिर कहीं पे भी कुछ भी काम करते समय किस तरीके से हम लोगों ने रहना चाहिए, किस तरीके से हम लोगों को अवेयरनेस रखना चाहिए, है ना। देन अप्लाई द सेफ्टी प्रैक्टिसेस एंड इंस्पेक्शंस, इंस्पेक्शन करते आना चाहिए, है ना, यूजिंग द स्ट्रैटेजीज ओके दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर एंड डेवलप्ड थ्रू हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस। ये भी एक टेक्निक है, वो हम लोगों को स्टडी करना है, उसके थ्रू हम लोग एक कर पाएंगे, इंस्पेक्शन कर पाएंगे, सेफ्टी इंस्पेक्शन। देन कैटेगराइज द डिफरेंट हजार्ड्स, मतलब हजार्ड के कुछ टाइप्स भी होते हैं, कहाँ कहाँ क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, एंड इट्स सेफ्टी प्रिवेंशन। अगर वो हजार्ड्स है तो उसको रोकने के लिए हम लोगों के पास प्रिवेंशन प्लान क्या है, वो प्लान भी हम लोगों को पता होना चाहिए, और वो प्लान उसको हम लोगों को कैटेगराइज भी करने आना चाहिए। अगर कहीं पे भी एक्सीडेंट हो गया, उसका इंस्पेक्शन करने हम लोग चले गए, मतलब यानी उसका रिव्यू करने चले गए, तो उसके बाद हमको कैटेगराइज करते आना चाहिए कि किस टाइप का एक्सीडेंट था और किस टाइप की कैजुअलिटी हुई है, या फिर कुछ ऐसा हुआ वैसा हुआ, है ना। तो सब चीज़ें इसमें हम लोगों को करते आना चाहिए, इसलिए हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो अभी देखिए एग्जामिनेशन स्कीम है इसका, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 60 मार्क्स। ओके, सभी को पता है टाइम तो उतना ही रहेगा, तो 3 आवर्स है, और इंटरनल सेशनल एग्जामिनेशंस 40 है, 40 मार्क्स का है। इसमें क्या रहेगा हम लोगों का, 2 आईएससी रहेगा, है ना। तो उसमें 2 × 20 मार्क्स के 2 आईएससी रहेंगे, यानी कंपलसरी मार्क्स रहेंगे, इसमें कोई आपको ऑप्शनल नहीं रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि सर हमको एक्स्ट्रा कुछ ये मिलेगा, टाइम मिलेगा, या फिर इम्प्रूवमेंट देने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलता है। अगर कोई एक आधे बार आपका मेडिकली कोई प्रॉब्लम है तो ही वो चांसेस रहते हैं, फिर भी वो इन आपको परमिशन लेके ही करना पड़ता है। और credits you are having, that is 3 for this course. Okay, then we are having this topics to study in this unit number 1, that is what, introduction to industrial safety. So introduction to industrial safety, that is unit 1. Okay, history and development of safety movement. Okay, हिस्ट्री क्या है, कब से और कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ सेफ्टी का काम, नहीं तो पहले तो कुछ सेफ्टी नहीं था। नीड फॉर सेफ्टी, देन सेफ्टी लेजिस्लेशंस, मतलब क्या एक्ट है, किस तरीके से कौन से नंबर का रूल है, किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, और को राइट्स हमारे क्या क्या है। देन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स, ये भी देखना है हम लोगों को, ये सिलेबस है एक्चुअली। सेफ्टी पॉलिसीज, सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज ऑफ डिफरेंट लेवल्स, कौन से लेवल पे कौन सी अथॉरिटी क्या काम करती है, ये सब हम लोगों को देखना है। एक्सीडेंट सीक्वेंस थ्योरी, सो इसमें हम लोग देखते हैं कि एक्सीडेंट्स होने से पहले क्या हुआ होगा। मतलब जैसे हम लोग देखते हैं ना कि अगर कोई एक पुल ब्रेक डाउन हो गया है ना, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जब ब्रिज जो भी है ना, ब्रेक डाउन होने से पहले मतलब
अचानक से हमको दिखता है ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन कुछ 6 महीने से उसका ब्रेक डाउन होते 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 आया होगा, है ना, या फिर 1 साल से हो रहा होगा, कहीं तो भी एक छोटा सा क्रैक आया होगा, उसको कोई देखा नहीं है। वो क्रैक आया तो वो कैसा होता है कि बढ़ते 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 चला जाता है और वो बॉडी को वीक करते जाता है। उसमें जब भी कभी अभी पूरा लास्ट पॉइंट पे आता है तो तड़ा धड़ाम से वो गिर जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि हर 6 महीने में सेफ्टी ऑडिट्स होने चाहिए हर एक चीज़ का, है ना। वो ऑडिट्स अगर नहीं हुए हैं तो ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती है ना। तो कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल टेक्निक से भी हम लोग देखने वाले हैं। देन सेफ्टी, प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन, जॉब सेफ्टी एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट्स। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग होते हैं, है ना। देन फर्स्ट एड, सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट एड अगर रहा तो एक्सीडेंट भी हुआ भी तो थोड़ा एटलीस्ट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो ये सब था अपना syllabus. So what we need to study, safety at the industry, है ना, सेफ्टी वेयर एट वर्क, ओके, बराबर है। ये जो है ह्यूमन, सो इससे इंडस्ट्री चलती है, ओके। और इनके लिए हम लोगों को सेफ्टी इक्विपमेंट्स देना ज़रूरी है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी, है ना। तो ये हम लोगों को देखना है। अभी देखिए क्या है, वाई सेफ्टी इज नेसेसरी। कैन यू सी दिस hazards which has happened? What is this? Some chemical factory is there, okay, these are the boilers, and suddenly some fire has been started somewhere, and it has been taken all the plant under its what you can say, fire, okay. So here we cannot say that no casualty will be there, and what will happen there, that also we don't know. So this also we are having same type of plants which are caught in accident, caught in a fire. Here also it is very dangerous and very what you can say, fiery to see this all. Here we can see this why safety is necessary. So जब भी कहीं, ठीक है, हमको हमारे ऊपर बहुत सारा फेथ है, हमारे ऊपर बहुत सारा खुद पे ऊपर भरोसा है कि हम लोग कभी भी विदाउट सेफ्टी काम कर सकते हैं, और हमको लगता है कि कभी भी हम लोग गिर नहीं सकते, मेरे के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। लेकिन क्या हो सकता है, अगर आप लोगों ने सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहने तो क्या प्रॉब्लम होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन नहीं पहने तो कभी गलती से भी, या फिर आपकी गलती नहीं है, कोई इक्विपमेंट की गलती है कि जहाँ पे हम लोग मतलब ऊंचाई पे अगर बैठ के काम कर रहे, वो रॉड ही टूट गया, है ना, तो आपका गलती नहीं है उसमें, आपका आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, लेकिन किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस हमको नहीं रखना है। तो उसके लिए सेफ्टी जो चीज़ें हैं, सेफ्टी की चीज़ें सभी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हमारा लाइफ एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग इतना बड़ा चांस छोटी चीज़ के लिए नहीं ले सकते। अकॉर्डिंग टू द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, every year almost 6,000 people are fatally injured at work। ये भी क्या है, जो रजिस्टर्ड है वही, है ना। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट रजिस्टर्ड। मोर देन 4 million people suffered non-fatal injuries, okay, including over a million of which cause they miss 1 or more days of its work, okay. These are all what we can call it as the things we need to understand, we need to see regarding the safety। इतनी कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए। जब भी हम लोग यहाँ पे अभी देखिए, कुछ सेफ्टी है क्या यहाँ पे इनके पास, निग्लिजेंस, इसको क्या बोलते हैं, निग्लिजेंस, कि हम कर लेंगे भाई, है ना,
हम लोग हमारे ऊपर रिस्क लेके कर लेंगे, लेकिन वो कभी कभी बहुत डेंजर भी होता है ना। ये सब चीज़ें जो है, यहाँ पे ऊपर से गिर गया है ना, हेलमेट नहीं पहना था, ये हेलमेट यहीं पे रखा हुआ था, ये ऐसे विदाउट हेलमेट चला जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर से कुछ आ रहा है और गिर गया धड़ाम से, है ना, लग गया। फिर ये लेके जा रहा है और ऊपर से कुछ गिर गया, हेड के ऊपर हेलमेट भी नहीं है ना। ये सब चीज़ें देख रहे हैं हम लोग। तो इससे क्या होता है कि सभी चीज़ें आपको सेफ्टी नहीं है, निग्लिजेंस की वजह से बहुत सारी जाने जाती है। What's even worse than the bare statistic is that the great many of these dreams and injuries, deaths and injuries were due to carelessness. डेथ भी हो सकती है केयरलेसनेस की वजह से और निग्लिजेंस की वजह से। नहीं तो कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई बाहर जा रहे हैं, नहीं यहाँ से ही जाके आना है, क्या हेलमेट पहनना है ना। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि ये बहुत मतलब ये है हेलमेट पहनना बोले तो पिछड़े जैसा लगता है ना, और नहीं पहनेंगे हम लोग। लेकिन वहाँ से जाते जाते ही कहीं किसी ने और आके मतलब गाड़ी चढ़ा दी, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उसी टाइम हमारे पास हेलमेट नहीं था, नहीं तो हम लोग हर बार पहनते थे। सो ये सब चीज़ें हैं, निग्लिजेंस, छोटा सा निग्लिजेंस भी जान लेके चला जाता है। सो एंड कुड हैव इजीली बीन अवॉइडेड बाय पेइंग मोर अटेंशन एंड टू द सेफ्टी गाइडलाइंस। ये बाद में कह के हम लोगों को के पास कुछ नहीं होता है, अगर थोड़ा सा अटेंशन अगर दिया होता तो हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते थे, लेकिन वो जब जान चली जाती है तो वापस नहीं आती है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि व्हाट इज मीन बाय इंडस्ट्रियल सेफ्टी। हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज जस्ट प्राइमरीली ए मैनेजमेंट एक्टिविटी विच इज कंसर्न्ड विथ reducing, controlling, eliminating the hazards from the industrial or industrial units. Okay, from the industries and industrial units. So क्या क्या हम लोग करते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, प्राइमरीली क्या है, ए मैनेजमेंट एक्टिविटी है ना। ओके, विच इज कंसर्न विद द, क्या किससे रिलेटेड है, रिड्यूस, कंट्रोल मतलब रिड्यूस हजार्ड्स, कंट्रोल्स हजार्ड एंड एलिमिनेट हजार्ड्स। सबसे पहले रिड्यूस करना है, उसके बाद जो भी हो रहा है, होने वाला है, उसको कंट्रोल करना है, अवॉइड करना है, देन एलिमिनेट करना है ना। वो फ्रॉम द इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल यूनिट्स, मतलब जो भी काम वर्क प्लेस बोल सकते हैं इसको हम लोग, वर्क प्लेस से सभी टाइप्स के हजार्ड्स हमको एलिमिनेट करना है, that is called as industrial safety. Safety is what, it is the simple term means freedom from the occurrence of risk or injury or loss, है ना। कहीं पे भी किसी भी जगह पे हम लोग जाएंगे तो सेफ्टी कब कहेंगे, कि कभी भी कोई भी चीज़ जैसे कि रिस्क है, इंजरी है, लॉस है, इससे फ्री है ना, तो उसको हम लोग सेफ्टी बोलते हैं। एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द डेंजर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। इंडस्ट्रियल सेफ्टी यानी क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम डेंजर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। ओके, एंड इंडस्ट्रियल हजार्ड क्या है, it may be defined as the any condition produced by the industries that may cause injury or death टू द पर्सन और लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी। कहीं पे भी अगर प्रॉपर्टी का लॉस हुआ तो भी बहुत दिक्कत है, डेथ हुआ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इंजरी हुआ तो भी दिक्कत है ना। ये सब चीज़ों को जो भी है हमको क्या करना है, अवॉइड करना है, और कैसे अवॉइड करना है यही हम लोग देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज हजार्ड्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हजार्ड्स, है ना। सबसे हम लोगों ने देखा ही है कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल हजार्ड्स, दैट मे बी वट एवर द एनी कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज। ओके, जो भी कंडीशन है,
that may cause injury, death or personal or loss of properties, that is called as the hazards. दैट में भी बायोलॉजिकल हजार्ड्स है ना, बायोलॉजिकल इक्विपमेंट्स में कुछ ऐसा ये आया बायो वार्स जो हम लोग अभी बोल रहे हैं है ना, उसकी वजह से कुछ वायरसेस लीक हो गए या फिर कुछ ऐसा हो गया है ना, या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स हम लोगों ने वहाँ पे रखे हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है कि ह्यूमन को दिक्कत होती है, और या फिर कुछ एलर्जीज होती है, इंजरीज हो सकती है ना, तो वो भी इसमें आता है हज़ार्ड्स में, बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स में। देन केमिकल हज़ार्ड्स, केमिकल की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या फिर एसिड रेन हो रहा है, या फिर केमिकल की वजह से हमारा जो स्किन है ना, उसके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट गिर रहा है, या फिर हमारे आईज़ के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट गिर रहा है, या फिर हमारा जो भी है कोई भी चीज़ें है हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द केमिकल हजार्ड्स। या फिर उसके ऊपर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक्सप्लोजन भी हो सकता है केमिकल की वजह से। देन मैकेनिकल हजार्ड्स, इसमें क्या है कुछ लगना, कटना, या फिर मूविंग पार्ट्स जो होते हैं मैकेनिकल के, उसमें कुछ कहीं पे हमारा पैर आ जाना, या फिर कहीं से कुछ गिर जाना हमारे सर के ऊपर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल हजार्ड्स। फिजिकल हजार्ड्स वही है, मैकेनिकल के रिलेटेड ही है। सो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, फिजिकली हम लोग काम कर रहे हैं तो वहीं पे हमारा कुछ एक्सीडेंट होता है या फिर हम गिर जाते हैं कहीं से, दैट इज़ फिजिकल हजार्ड्स। देन इलेक्ट्रिकल हजार्ड, सबसे इम्पोर्टेंट हमको हमारे लिए क्या है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, लेकिन हमको ये सभी देखना है। इलेक्ट्रिक हजार्ड्स जो है प्रायोरिटी में देखेंगे हम लोग, है ना। तो इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स जब भी हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, सेफ्टी ग्लोव्स, है ना। तो इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स में क्या है, स्पार्क होता है, या फिर फायर हजार्ड्स आ जाता है, या फिर कभी कभी इसकी वजह से शॉक लग जाता है ना, या फिर इसकी वजह से मतलब स्पार्किंग की वजह से इक्विपमेंट्स ख़राब हो सकते हैं, है ना, ये भी इसमें आता है। देन फायर एंड डस्ट हजार्ड्स, फायर हजार्ड्स में सब जल जाता है या फिर इंजरीज भी होती है, और उसके साथ ही डस्ट हजार्ड जो है हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को बढ़ावा देता है ना। देन टाइप्स ऑफ हजार्ड्स जो भी है तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा ये भी देख लिया है ना। तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं क्योंकि हमारा आगे लेक्चर है ना। तो एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस वन, यू कैन आस्क मी प्लीज।